उसे शक था, मुझे शक था उस पे, मुझे शक था, मेरा हक था उस पे। उसे जाना था, मुझे रोना था, यही होना था। उसे पता था दिल किस हद तक था उस पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की के जनूबी इलाके और शाम हौलनाक ज़लज़ले से लर्ज़ उठे हैं और इसी वजह से तुर्की और शाम में सोग का समा और कोहराम मचा हुआ है। तुर्की में मरश और गाजी एंतिब वाले इलाके तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और अब तक तकरीबन 5000 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और इन शहादतों की तादाद 10,000 से भी ज्यादा हो सकती है। और नाज़रीन इकराम, ज़लज़ला ज़दा इलाकों से ऐसी तस्वीर और वीडियोस मुसलसल मौसूल हो रही है कि किसी भी दर्द दिल रखने वाले शख्स के आंसू नहीं रुक सकते। तुर्की और शाम में मलबा हटाने के दौरान काबिल रश्क ईमान के ऐसे मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि यकीन हो जाता है कि उम्मत मुस्लिमा इन्हीं लोगों की वजह से मुकम्मल तबाह होने से बची हुई है। शाम की एक वीडियो में एक बाबा जी को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाबा जी ये बहस कर रहे हैं कि मुझे मलबे से निकालने की फिक्र बाद में करो, पहले मुझे पानी दे दो ताकि मैं वुजू करके नमाज पढ़ लूं। वक्त निकल रहा है और रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि आप माजूर हैं, बाद में कज़ा पढ़ लीजिएगा। अल्लाह अकबर। هسه انت شويه النوب ان شاء الله نطالعك وتتوضا وتصلي وما بيك شيء. يلا قول يلا هاك تعال نعدي لك البطانيه. لا تصلي سعود تصلي قضاء. لا تصلي قضاء يا عمي. اور اسی طرح ناظرین اکرام، ترکی کی ایک اور ویڈیو آئی ہے جس میں ترک خاتون ملبے تلے دبی ہوئی ہے اور ملبہ ہٹانے والوں سے کہہ رہی ہے کہ میرے سر پر دوپٹہ نہیں، میں باہر کیسے نکلوں، اور حجاب ملنے کے بعد ہی وہ باہر نکلی۔ تو ناظرین اکرام، ہماری دعائیں اپنے ترک اور شامی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے کہ محمد بوزدیگ نے اپنے ڈراموں سے متعلق کیا اہم اعلان کیا ہے۔ کرولوش عثمان کے کس اداکار کی تمام فیملی ملبے تلے دب گئی ہے۔ شام کے رافضی حکمران بشار الاسد نے زلزلہ زدگان کے ساتھ کیا خوفناک اور حیوانیت سے بھرا سلوک کیا ہے کہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ترکی ڈرامے اب کب تک ریلیز ہوں گے؟ پاکستان کی طرف سے ترکی اور شام کی کیا امداد گئی ہے؟ ترکی میں کون سی ایک اہم تاریخی عمارت تباہ ہو گئی ہے؟ تو ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ریسرچر فرینک ہوگربیٹ، جن کے بارے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ یہ ایک ریسرچر ہیں اور اس زلزلے سے متعلق 1 فروری کو بتا چکے تھے، تو انہوں نے اپنی ایک اور ٹویٹ کی ہے اور کہا ہے کہ وسطی ترکیہ میں آنے والے بڑے زلزلوں نے پورے خطے میں ایک نمایاں تبدیلی کی ہے، جس کے نتیجے میں فلسطین تک زلزلے کے اثرات پہنچ گئے ہیں اور واضح طور پر یہ خطہ ری سیٹل ہو رہا ہے۔ اور اب تک ترکی میں 3 بڑے زلزلے اور 185 چھوٹے زلزلے آ چکے ہیں۔ اور درل شارترول میں عبد الرحمن غازی کا کردار ادا کرنے والا اداکار جلال ایل مسلسل امدادی کاموں اور سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اور آپ میں سے جو لوگ اس بارے میں اپڈیٹ رہنا چاہیں کہ اس وقت ترکیہ میں کیا صورتحال ہے، تو آپ ان کے فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں۔ کرولوش عثمان کے فینز یقیناً دکھی بھی ہوں گے اور ڈرامے کی قسط کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اب یہ ڈرامہ کب تک ریلیز ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، اس بارے میں 3 قسم کی خبریں مل رہی ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ ترکی کے تمام تاریخی ڈراموں کی اقساط صرف اس ہفتے نہیں آئیں گی، کیونکہ ترکیہ میں 7 روزہ سوگ کا اعلان طیب ایردوان کی طرف سے کیا گیا ہے، اس لیے اس احترام میں قسطیں بھی روک لی گئی ہیں۔ دوسری خبر اس حوالے سے یہ ہے کہ فروری کے مہینے میں تمام ٹرکش ڈراموں کی قسطیں بند رہیں گی۔ اور اسی حوالے سے تیسری اطلاع یہ ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ ڈرامے بند کر دیے گئے ہیں، اور جب ترکی میں حالات نارمل ہوں گے تب یہ قسطیں بھی چینلز دکھانا شروع کر دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اس بارے میں ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ آیا یہ ڈرامے دوبارہ کب تک دکھائے جائیں گے۔ اور ناظرین اکرام، ڈرامہ نہ دکھانے کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تمام اداکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جن کی وجہ سے وہ شوٹنگ پر نہیں آ سکتے اور آنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ گھر میں فوتگی ہو گئی ہو اور اسی دن گھر میں شادی بھی ہو لیکن وہ کینسل نہ کی جائے۔ اور ناظرین اکرام، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا دل بھی ترکیہ کی طرف سے ملنے والی ویڈیوز اور خبروں کی وجہ سے دکھی ہوگا، اور ہمارا یہ ڈرامے دیکھنے کا بھی دل بھی نہیں کر رہا، بلکہ دعاؤں کے لیے ہی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ناظرین اکرام صرف 1 منٹ کا جھٹکا ہے، جس کے بعد اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، مال و دولت، پراپرٹی، کیش، گھر، رتبہ، بادشاہی، سرداری اور وزارت سب بھول جاتا ہے اور زبان پر صرف اللہ کا نام رہ جاتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، میں نے خود ایسی خبر دیکھی ہے جس میں زلزلے کے دوران بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے اپنے ایک ملحد پڑوسی کو سب سے زیادہ اونچی آواز سے اللہ کا نام پکارتے سنا،
तो देखिए कि एक ज़लज़ले ने कितनों का ईमान ताज़ा कर दिया होगा और कितनों का ईमान लौटा दिया। और महमद बोज़दैक ने भी इस मौके पर ताज़ियती पैगाम जारी किया है और अफसोस का इजहार करने के बाद कहा है कि वो अपनी कंपनी की वैन्स, जनरेटर, मशीनरी, नकद रकम और जो भी मुतासिरीन के काम कोई चीज आ सकती है तो वो ज़लज़ला जोन में भेज रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को शायद याद होगा कि पाकिस्तान में पिछले साल जब सैलाब ने तबाही मचाई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अदाकार एक अवार्ड शो में शिरकत के लिए कनाडा चले गए थे, जबकि तुर्की में महमद बोज़दैक, जिनका तुर्की में सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है यानी बोज़दैक फिल्म्स, तो उन्होंने अपने तमाम प्रोजेक्ट रोककर सारा सामान इमदादी कार्रवाइयों के लिए वक्फ कर दिया है। और फिर हमारी पाकिस्तानी अदाकाराएं कहती हैं कि हमें पाकिस्तानी इज्जत नहीं देते, और यासिर हुसैन और फहद मुस्तफा जैसे टीवी पर आकर रोना धोना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानी हमारे ड्रामों से ज्यादा तुर्की के ड्रामे देखते हैं। पहले आप अपनी खुद इज्जत करवाना सीखें, फिर आप हमसे शिकवा करें। और कुरुल्लुश उस्मान के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। आप लोगों को कुरुल्लुश उस्मान के सीजन 1 में निजामुद्दीन का किरदार किस किस को याद है? ये निजामुद्दीन, जो कि वैसे तो आलिशार का वफादार होता है, लेकिन असल में वो यानिस का जासूस होता है जो आलिशार की जासूसी करता है। तो नाज़रीन इकराम, इस अदाकार की तमाम फैमिली ज़लज़ले के दौरान लापता हो गई है और वो इस तरह की इनकी तमाम फैमिली मलबे के नीचे दब गई है। और इनका कहना है कि मेरे लिए ये बहुत बुरा दिन है और ऐसा लगता है कि मैंने इन्हें खो दिया है। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि इन्हें और जितने भी ज़लज़ला मुतासरीन अपने खानदानों से बिछड़ गए हैं, इन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और इन्हें अपने प्यारों से वापस मिला दे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, शाम का शुमाली मगरबी इलाका बल्दा मारे ज़लज़ले से तबाह हो गया है, जहां रेस्क्यू रज़ाकार पहुंच गए हैं और वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान शाम का नाम नेहाद हुक्मरान बशारुल असद अपनी खबासत और कमीनगी दिखाने से बाज नहीं आया और उसकी फज़ाइया ने उसके हुक्म पर उस इलाके पर तबाहकुन बमबारी कर दी। और इस इलाके पर बमबारी करने की वजह सिर्फ ये है कि ये इलाका बशारुल असद की अपोजिशन के कब्जे में है, इसलिए उसने इस मौके को गनीमत जाना और बमबारी करवा दी। और अफसोस की बात यह है कि इस हरकत पर दुनिया खामोश है सिवाय बरतानिया के, जिसके वजीर खारजा जेम्स क्लैफर्ड ली ने मजम्मत की है और कहा है कि आइंदा ऐसा ना हो। जबकि अफसोस की बात तो यह है कि इतने अहम मसले पर तमाम मुसलमान ममालिक खामोश हैं और उनकी तरफ से किसी भी किस्म का मजम्मती बयान सामने नहीं आया। अगर तुर्की भी ज़लज़ले की जद में ना होता तो सबसे पहले इसके खिलाफ तुर्की में आवाज बुलंद होनी थी, लेकिन चूंकि तुर्की अपनी परेशानी में है तो उसके अलावा बाकी किसी भी मुसलमान मुल्क को तौफीक ना हुई कि इतनी गलत हरकत पर मजम्मत के चंद अल्फाज ही बोल दे। तुर्किया में 1999 में इस्तांबुल के करीब मशरकी मरमरा के साहिली खित्ते में आने वाले ज़लज़ले में 17,000 शहादतें हुई थी और इसके बाद अब 2023 में आने वाले ज़लज़ले में उसके बाद ये सबसे ज्यादा शहादतें हैं। और नाज़रीन इकराम, ये शहीद ही हैं, इनके लिए हलाक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मफहूम के मुताबिक शहीद 5 किस्म के हैं। नंबर 1 जो ताउन से मर जाए, नंबर 2 जो पेट की बीमारी में मर जाए, नंबर 3 जो डूब जाए, नंबर 4 जो मलबे तले दबकर मर जाए और नंबर 5 जो अल्लाह की राह में लड़ता हुआ मर जाए। और पाकिस्तान में रहने वाले ये जानना चाहेंगे कि इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान तुर्की की क्या मदद कर रहा है। तो नाज़रीन इकराम, एक पाकिस्तानी C-130 एयरफोर्स तैयारा तुर्की भेजा गया है, जिसमें 30 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एम्बुलेंसेज, पाकिस्तान आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स और जरूरी तिब्बी इमदाद का सामान है। तो ये तैयारा तुर्किया के अदाना एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। जबकि नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान से ही 51 अफराद पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम के मेंबर्स स्पेशल रेस्क्यू सामान के साथ इस्तांबुल पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का एक दूसरा C-130 तैयारा ज़लज़ला ज़दगान के लिए तकरीबन 10 टन वजनी सामान लेकर तुर्किया भेज दिया गया है और ये 10 टन उन खेमों और कंबलों का वजन है जो इस सामान पर मुश्तमिल है। और कहा जा रहा है कि दुनिया ने एक बार फिर शाम को तन्हा छोड़ दिया है, जहां ज़लज़ले से अब तक 1440 शहादतें हो चुकी हैं और दुनिया में किसी भी मुसलमान मुल्क ने उन्हें पूछा तक नहीं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत के अलावा शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान से इमदादी सामान जहाज के जरिए तुर्की और शाम भेजा जाएगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज दमिश्क पहुंच चुका है, जिसमें इमदादी सामान है। और नाज़रीन इकराम, तुर्की में ज़लज़ले से गाज़ियान्तेप किले की तबाही की खबर तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। जबकि एक और तारीखी मस्जिद जिसका नाम यनी जामे मस्जिद है, जो मलातिया के इलाके में वाक़ है, इसके गुम्बद ज़लज़ले से गिर चुके हैं और मस्जिद अपनी छत से महरूम हो गई है। जबकि ये मस्जिद ज़लज़ले से चौथी बार तबाह हुई है।
क्योंकि पहले ये 1894 में आने वाले ज़लज़ले से तबाह हुई और फिर तामीर हुई, फिर 1964 में आने वाले ज़लज़ले से इसे नुकसान पहुंचा और अब ये फिर चौथी बार तबाह हुई है। तो नाज़रीन इकराम, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।